غرور انسان کو وہاں اندھا کر دیتا ہے جہاں حقیقت اس کی آنکھوں کے سامنے کھڑی ہوتی ہے۔ صبح کی پہلی کرنیں ابھی سلطنت نورستان کے بلند میناروں کو چھو ہی رہی تھیں۔ محل کی سنہری دیواریں سورج کی روشنی میں اس طرح چمک رہی تھیں جیسے زمین پر کوئی دوسرا سورج طلوع ہو گیا ہو۔ محل کے صحن میں خادم قطار بنائے کھڑے تھے، سپاہی اپنی زرہوں کو چمکا رہے تھے اور دربار کی تیاری پورے زور و شور سے جاری تھی۔ یہ سلطنت اپنی دولت، شان و شوکت اور طاقت کے لیے دور دور تک مشہور تھی۔ لوگ کہتے تھے کہ یہاں کے خزانے میں اتنا سونا موجود ہے کہ اگر کئی نسلیں بھی اسے خرچ کریں تو ختم نہ ہو۔ مگر اس سلطنت کی سب سے بڑی آزمائش اس کا واحد وارث شہزادہ سلیم تھا۔ شہزادہ بے حد ذہین، خوبصورت اور بہادر تھا، لیکن اس کی ایک عادت ایسی تھی جس نے اس کی تمام خوبیاں ماند کر دی تھیں۔ وہ اپنی دولت، اپنے نسب اور اپنے اقتدار پر اس قدر مغرور تھا کہ اسے عام انسانوں کی کوئی حیثیت دکھائی نہیں دیتی تھی۔ وہ اکثر کہا کرتا، دنیا میں عزت صرف طاقتور کی ہوتی ہے، غریب اور کمزور لوگ صرف دوسروں کی خدمت کے لیے پیدا کیے جاتے ہیں۔ درباری اس کی ہر بات پر سر جھکا دیتے کیونکہ کوئی بھی اس کی مخالفت کی جرات نہیں کرتا تھا۔ ہر شخص جانتا تھا کہ شہزادہ غصے میں آ جائے تو سزا دینا اس کے لیے معمولی بات تھی۔ سلطنت کے بوڑھے وزیر نے کئی بار بادشاہ سے کہا، جہاں پناہ، شہزادہ علم میں تو کامل ہے مگر دل کی نرمی سے محروم ہے۔ اگر یہی حال رہا تو ایک دن یہ غرور پوری سلطنت کے لیے مصیبت بن جائے گا۔ بادشاہ خاموش ہو جاتے۔ وہ جانتے تھے کہ وزیر سچ کہہ رہا ہے، مگر وہ اپنے بیٹے سے بے حد محبت کرتے تھے۔ اسی سلطنت کے ایک دور افتادہ حصے میں ایک فقیر رہتا تھا۔ اس کا نام بابا فقیر الدین تھا۔ اس کے پاس نہ کوئی محل تھا، نہ دولت، نہ خادم، نہ جاہ و جلال۔ اس کی کل کائنات ایک پرانی سی جھوپڑی، ایک مٹی کا پیالہ، چند کتابیں اور ایک بوسیدہ چادر تھی۔ مگر عجیب بات یہ تھی کہ بادشاہوں سے لے کر عام کسان تک ہر شخص اس فقیر کا احترام کرتا تھا۔ لوگ کہتے تھے وہ صرف کتابوں کا عالم نہیں، دلوں کا طبیب بھی ہے۔ اس کی مجلس میں بیٹھنے والا انسان اپنے دل کا بوجھ ہلکا محسوس کرتا تھا۔ وہ کبھی کسی کو نیچا نہیں دکھاتا تھا، نہ کسی کی دولت دیکھ کر متاثر ہوتا، نہ غربت دیکھ کر حقارت کرتا۔ وہ ہمیشہ ایک ہی بات کہتا، انسان کی قیمت اس کے لباس سے نہیں، اس کے کردار سے ہوتی ہے۔ ایک دن شہزادہ شکار کھیلنے کے لیے جنگل کی طرف روانہ ہوا۔ اس کے ساتھ درجنوں سپاہی، بہترین گھوڑے اور شکاری موجود تھے۔ شکار کے دوران ایک ہرن اچانک گھنے جنگل کی طرف بھاگا۔ شہزادہ غرور میں اکیلا ہی اس کے پیچھے دوڑ پڑا۔ چند لمحوں بعد اسے احساس ہوا کہ وہ اپنے تمام ساتھیوں سے بچھڑ چکا ہے۔ ہر طرف خاموشی تھی۔ درختوں کے سائے لمبے ہوتے جا رہے تھے۔ ہوا میں ایک عجیب سی سنجیدگی تھی۔ کافی دیر بھٹکنے کے بعد اسے دور ایک چھوٹی سی جھوپڑی دکھائی دی۔ وہ گھوڑے سے اترا اور دروازے پر دستک دی۔ اندر سے ایک نحیف مگر پرسکون آواز آئی، دروازہ کھلا ہے، اندر آ جاؤ۔ شہزادہ اندر داخل ہوا۔ اس نے دیکھا کہ ایک سفید ریش بزرگ چٹائی پر بیٹھے کتاب پڑھ رہے ہیں۔ ان کے چہرے پر ایسی روشنی اور سکون تھا جو اس نے اپنی پوری زندگی میں کسی بادشاہ کے چہرے پر بھی نہیں دیکھا تھا۔ شہزادے نے سخت لہجے میں کہا، اے بوڑھے، کیا تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ بزرگ نے مسکرا کر کتاب بند کی، پھر نہایت اطمینان سے بولے، میں یہ ضرور جانتا ہوں کہ تم ایک انسان ہو، باقی تمہارا نام، عہدہ، رتبہ میرے لیے کوئی خاص اہمیت نہیں رکھتا۔ یہ جواب سن کر حیران بھی ہوا اور ناراض بھی۔ اس نے زندگی میں پہلی بار کسی کو دیکھا تھا جس پر اس کی شان و شوکت کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ شہزادہ بولا، میں اس سلطنت کا ولی عہد ہوں۔ بزرگ نے مسکراتے ہوئے کہا، اچھا، تو پھر تمہاری ذمہ داری ایک عام انسان سے کہیں زیادہ ہے۔ شہزادہ کچھ لمحوں کے لیے خاموش ہو گیا۔ اسے امید تھی کہ بزرگ اس کے سامنے جھک جائیں گے، مگر ایسا کچھ نہ ہوا۔ فقیر نے پانی کا پیالہ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، بیٹا، پیاسے انسان کے لیے پانی کی قیمت بادشاہت سے زیادہ ہوتی ہے۔ پہلے پانی پی لو، پھر گفتگو کریں گے۔ شہزادے نے پیالہ لیا۔ وہ پہلی بار کسی فقیر کے ہاتھ سے پانی پی رہا تھا۔ اسے خود بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر اس بوڑھے میں ایسی کون سی بات ہے جس کی وجہ سے وہ اس کے سامنے بے اختیار خاموش ہوتا جا رہا ہے۔ کچھ دیر بعد فقیر نے آسمان کی طرف دیکھا اور آہستہ سے کہا،
अल्लाह बाज लोगों को दौलत देकर आजमाता है और बाज को गुर्बत देकर, मगर असल कामयाब वो है जो किसी भी आजमाइश में अपने रब को ना भूले। शहजादे ने तंजिया अंदाज में कहा, अगर तुम इतने ही दाना हो तो फिर इस झोंपड़ी में क्यों रहते हो? महल में क्यों नहीं? फकीर ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, जिस इंसान ने अपने दिल में सुकून का महल बना लिया हो, इसे पत्थर के महल की जरूरत नहीं रहती। ये अल्फाज तीर की तरह शहजादे के दिल में उतर गए, मगर उसका गुरूर अभी बाकी था। उसने दिल ही दिल में सोचा, मैं इस फकीर को गलत साबित करके रहूंगा। इसे मालूम होना चाहिए कि दुनिया में असल ताकत दौलत और हुकूमत की होती है, न कि चंद नसीहतों की। मगर इसे ये मालूम नहीं था कि आने वाले दिनों में यही फकीर उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाला था और एक ऐसी जगह ले जाएगा जहां पहुंचकर बादशाह और भिखारी के दरमियान हर फर्क हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। अगली सुबह सूरज अभी पूरी तरह तुलू भी नहीं हुआ था कि शहजादा सलीम की आंख खुल गई। रात भर वो फकीर की बातों के बारे में सोचता रहा था। एक अजीब बेचैनी उसके दिल में घर कर चुकी थी। वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर एक मामूली फकीर के चंद जुमले उसके दिल पर इतना असर क्यों छोड़ गए थे। शहजादा अपने घोड़े पर सवार हुआ और बगैर किसी मुहाफिज के दोबारा उसी झोंपड़ी की तरफ रवाना हो गया। फकीरुद्दीन हस्बे मामूल अपनी झोंपड़ी के बाहर बैठा परिंदों को दाना डाल रहा था। शहजादे को देखकर उसने न हैरत जाहिर की और ना ही कोई खास इस्तकबाल किया, बल्कि मोहब्बत भरे लहजे में सिर्फ इतना कहा, मैं जानता था तुम आज जरूर आओगे। शहजादा चूक गया। आपको कैसे मालूम हुआ? फकीर ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जब दिल में सवाल पैदा हो जाए तो इंसान जवाब तलाश किए बगैर चैन से नहीं बैठ सकता। ये सुनकर शहजादा खामोश हो गया। कुछ देर खामोशी रही, फिर फकीर उठा और बोला, आओ आज मैं तुम्हें एक ऐसी जगह ले चलता हूं जहां हर बादशाह, हर सिपहसालार, हर आलिम और हर फकीर आखिरकार एक ही सफ में खड़े होते हैं। शहजादे ने हैरत से पूछा, वो कौन सी जगह है? फकीर ने मुख्तसर सा जवाब दिया, कब्रिस्तान। शहजादे के चेहरे पर नागवारी के आसार नुमायां हुए। मैं महलों में रहने वाला शख्स हूं, कब्रिस्तान जाकर क्या करूंगा? फकीर ने पुरसुकून अंदाज में कहा, जो सबक महल नहीं दे सकते वो अक्सर कब्रें दे देती हैं। ये जुमला सुनकर शहजादा खामोशी से उसके साथ चल पड़ा। चंद ही देर में वो सल्तनत के पुराने कब्रिस्तान पहुंच गए। वो जगह खामोश थी। हवा आहिस्ता आहिस्ता दरख्तों की शाखों से टकरा रही थी। परिंदों की आवाज़ें भी जैसे एहतराम में मद्धम हो गई थीं। कतार दर कतार कब्रें थीं जिन पर वक्त की गर्द जमी हुई थी। फकीर एक कब्र के सामने रुका, फिर उसने दूसरी कब्र की तरफ इशारा किया। बताओ, इन दोनों में कौन बादशाह है और कौन फकीर? शहजादा कब्रों को गौर से देखने लगा। कुछ देर बाद उसने बेबसी से कहा, मैं नहीं पहचान सकता। फकीर ने आहिस्ता से पूछा, क्यों? क्योंकि दोनों कब्रें एक जैसी हैं। फकीर ने शहजादे की आंखों में देखते हुए कहा, जब कब्रें एक जैसी हैं तो फिर जिंदा रहते हुए इंसान अपने आप को दूसरों से बड़ा क्यों समझता है? ये सवाल शहजादे के दिल में तीर की तरह पैवस्त हो गया। वो पहली बार किसी सवाल का जवाब न दे सका। फकीर उसे कब्रिस्तान के एक पुराने हिस्से में ले गया। वहां चंद कब्रें बिल्कुल बेनिशान थीं। फकीर ने जमीनिंग की तरफ देखते हुए कहा, कई साल पहले यहां एक बहुत बड़ा बादशाह दफन हुआ था। उसके जनाजे में हजारों लोग शरीक हुए थे। आज कोई उसका नाम भी नहीं जानता। फिर वो चंद कदम आगे बढ़ा और यहां एक गरीब मजदूर दफन है। उसके जनाजे में सिर्फ 4 आदमी थे, लेकिन आज भी लोग उसकी नेकियों का जिक्र करते हैं। शहजादे ने हैरानी से पूछा, तो क्या इंसान की पहचान उसकी दौलत नहीं होती? फकीर ने जवाब दिया, नहीं, इंसान की असल पहचान उसके आमाल होते हैं। दौलत कब्र तक साथ आती है, किरदार कयामत तक। ये अल्फाज सुनकर शहजादे के दिल में अजीब कैफियत पैदा हुई। इसी दौरान एक बूढ़ी औरत कब्रिस्तान में दाखिल हुई। उसके हाथ में चंद जंगली फूल थे। वो खामोशी से एक कब्र पर बैठी, दुआ की और आंसू बहाने लगी। शहजादे ने पूछा, ये किसकी कब्र है? फकीर ने जवाब दिया, ये उस औरत के शव है। वो सारी जिंदगी मजदूरी करता रहा, मगर कभी किसी का हक नहीं खाया। क्या वो अमीर था? नहीं। क्या वो मशहूर था? नहीं। फिर लोग इसे क्यों याद करते हैं? फकीर ने आहिस्ता से कहा,
क्योंकि इसने दिल जीते थे, खजाने नहीं। वापसी के रास्ते में दोनों खामोश थे। शहजादे के जहन में बेशुमार सवाल गर्दिश कर रहे थे। पहली बार उसे अपनी शाहाना जिंदगी मामूली महसूस होने लगी। इसे याद आया कि इसने कितने गरीब लोगों की बेइज्जती की थी, कितने मोहताजों की फरियाद को नजरअंदाज किया था और कितनी बार अपने गुरूर में लोगों के दिल तोड़े थे। इसके दिल में एक हल्की सी नदामत पैदा हुई, लेकिन गुरूर अभी मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं हुआ था। उसने अचानक फकीर से पूछा, अगर दौलत इतनी बेवकात है तो अल्लाह ताला बाज लोगों को अमीर क्यों बनाता है? फकीर मुस्कुराया, दौलत नेमत भी हो सकती है और आजमाइश भी। अगर दौलत इंसान को आजिज बना दे तो वो रहमत है, और अगर उसे मगरूर बना दे तो वो इम्तिहान है। ये जुमला सुनकर शहजादा गहरी सोच में डूब गया। जब दोनों झोंपड़ी के करीब पहुंचे तो फकीर ने शहजादे की तरफ देखा और कहा, आज तुमने कब्रों को देखा है, लेकिन अभी अपने दिल को नहीं देखा। शहजादे ने हैरान होकर पूछा, दिल को कैसे देखा जाता है? फकीर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, कल मैं तुम्हें आईना दिखाऊंगा, मगर वो शीशे का आईना नहीं होगा, वो तुम्हारी रूह का आईना होगा। ये कहकर फकीर अपनी झोंपड़ी में दाखिल हो गया। शहजादा काफी देर तक वहीं खड़ा रहा। इसे महसूस हो रहा था कि इसकी जिंदगी का एक नया बाब शुरू हो चुका है, मगर वो अभी नहीं जानता था कि अगली आजमाइश इसके गुरूर की जुड़ें हिला देगी। रात अपनी सिया चादर आहिस्ता आहिस्ता सल्तनत नूरिस्तान पर फैला चुकी थी, मगर शहजादा सलीम की आंखों से नींद कोसों दूर थी। वो अपने महल की बुलंद व बाला बालकोनी में खड़ा आसमान पर टिमटिमाती सितारों को देख रहा था। पहली बार इसे महसूस हो रहा था कि जिंदगी सिर्फ तख्त, ताज और सल्तनत का नाम नहीं। इसके जहन में बार बार फकीर अल-दीन का वो जुमला गूंज रहा था, आज तुमने कब्रों को देखा है, मगर अभी अपने दिल को नहीं देखा। शहजादा खुद से सवाल करने लगा, क्या वाकई में इतना मगरूर हूं? क्या लोग मुझसे मोहब्बत करते हैं या सिर्फ मेरे ओहदे से डरते हैं? अगर एक दिन मेरी बादशाहत खत्म हो जाए तो क्या कोई मुझे याद करेगा? ये सवाल उसके दिल में एक तूफान बर्पा कर रहे थे। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही वो दोबारा फकीर की झोंपड़ी पहुंच गया। फकीर हस्ब मामूल जिक्र इलाही में मशगूल था। शहजादा खामोशी से इसके सामने बैठ गया। कुछ देर बाद फकीर ने आंखें खोली और मुस्कुरा कर कहा, लगता है तुम्हारे दिल ने पहली बार तुमसे बात करना शुरू कर दी है। शहजादा धीरे से बोला, आपने कहा था कि आज आप मुझे रूह का आईना दिखाएंगे। फकीर ने सर हिलाया, हाँ, मगर इस आईने में सिर्फ वही अपना चेहरा देख सकता है जो सच बर्दाश्त करने का हौसला रखता हो। शहजादे ने पुरएतमाद लहजे में कहा, मैं तैयार हूं। फकीर इसे अपने साथ लेकर शहर की तंग गलियों में दाखिल हुआ। ये वो हिस्सा था जहां गरीब लोग रहते थे। कच्चे मकानात, टूटी हुई दीवारें, नंगे पांव खेलते बच्चे और मेहनत से थके हुए मजदूर हर तरफ नजर आ रहे थे। शहजादा हैरान रह गया। वो पहली बार अपनी सल्तनत का ये चेहरा देख रहा था। महल की दीवारों के अंदर इसे हमेशा यही बताया जाता था कि रियाया खुशहाल है, मगर हकीकत इसके सामने खड़ी थी। एक कमजोर बूढ़ा आदमी लकड़ियों का भारी गट्ठा उठाए जा रहा था। अचानक वो लड़खड़ाया और सारी लकड़ियां जमीन पर बखर गईं। वो दर्द से कराहने लगा। फकीर खामोशी से आगे बढ़ा, झुककर एक एक लकड़ी उठाने लगा। फिर इसने शहजादे की तरफ देखा, आओ इसकी मदद करो। शहजादा चंद लम्हे खामोश खड़ा रहा। इसने कभी किसी गरीब का बोझ नहीं उठाया था। इसके अंदर का गुरूर इसे रोक रहा था। मैं एक शहजादा हूं, मैं लकड़ियां कैसे उठाऊं? फकीर ने कुछ नहीं कहा, बस खामोशी से लकड़ियां उठाता रहा। चंद लम्हों बाद शहजादे ने आहिस्ता से झुककर एक लकड़ी उठाई, फिर दूसरी, फिर तीसरी। जब सारा गट्ठा दोबारा तैयार हो गया तो बूढ़े की आंखों में आंसू आ गए। वो हाथ उठाकर बोला, बेटा, अल्लाह तुम्हें दुनिया और आखिरत की इज्जत अता फरमाए। इस बूढ़े को मालूम भी न था कि जिस नौजवान को वो दुआ दे रहा है वही सल्तनत का शहजादा है। कुछ फासले पर एक छोटा सा बच्चा बैठा रो रहा था। इसके कपड़े फटे हुए थे। फकीर उसके करीब बैठ गया। बेटा, क्यों रो रहे हो?
बच्चे ने सिसकते हुए जवाब दिया, उम्मी बीमार हैं, 2 दिन से घर में खाना नहीं पक्का। ये सुनकर शहजादे के दिल पर जैसे किसी ने चोट लगा दी। इसे याद आया कि गुज़िश्ता रात महल में शाही दावत थी, जहां इतना खाना बच गया था कि कई गरीब खानदानों का पेट भर सकता था। फकीर ने अपनी झोली से चंद सूखे टुकड़े निकाले और बच्चे को दे दिए। बच्चा खुशी से दौड़ता हुआ अपने घर चला गया। शहजादा हैरत से बोला, आपके पास तो खुद कुछ नहीं, फिर भी सबको दे देते हैं। फकीर मुस्कुराया। कुछ आगे चलकर वो एक कुनवे के पास पहुंचे। वहां एक मजदूर पसीने में शराबूर पानी भर रहा था। फकीर ने शहजादे से कहा, ये बाल्टी खींचो। शहजादा चौंका, मैं? हां तुम। पहले तो उसने इनकार करना चाहा, मगर फिर खामोशी से रस्सी पकड़ ली। चंद ही लम्हों में इसके हाथों में छाले पड़ने लगे। सांस फूल गई। इसने बाल्टी जमीन पर रख दी। मजदूर मुस्करा कर बोला, हुजूर, हम तो रोज यही काम करते हैं। ये सुनकर शहजादा खामोश हो गया। इसे पहली बार एहसास हुआ कि जिन लोगों को वो हकीर समझता था, वही दरअसल अपनी मेहनत से पूरी सल्तनत को जिंदा रखे हुए है। वापसी के वक्त फकीर ने कहा, आज तुमने रू का पहला आईना देख लिया। शहजादे ने पूछा, कौन सा आईना? फकीर ने जवाब दिया, तुमने आज अपने गुरूर को अपने हाथों से लकड़ियां उठाते देखा, अपने दिल को एक भूखे बच्चे के लिए तड़पते देखा, और अपनी ताकत को एक मजदूर के सामने बेबस होते देखा। फिर वो रुक गया। बेटा, असल बादशाह वो नहीं जो तख्त पर बैठे, बल्कि वो है जो अपनी रियाया के दिलों में जगह बना ले। ये सुनकर शहजादे की आंखें नम हो गईं। इसने आहिस्ता से कहा, बाबा, शायद मैंने आज तक जिंदगी को गलत समझा था। फकीर ने शफकत से इसके कंधे पर हाथ रखा। नहीं बेटा, तुमने जिंदगी को देर से समझा है, मगर अभी वक्त बाकी है। इसी लम्हे महल का एक सिपाही घोड़ा दौड़ाता हुआ वहां पहुंचा। वो घबराहट में बोला, शहजादे हुजूर, फौरन महल चलिए। बादशाह सलामत अचानक शदीद बीमार हो गए हैं और पूरा दरबार आपका इंतजार कर रहा है। यह खबर सुनकर शहजादे के कदम जैसे जमीन में जिम गए। इसे महसूस हुआ कि जिंदगी का एक नया इम्तिहान इसका इंतजार कर रहा है। अब फैसला सिर्फ ये नहीं था कि वो तख्त संभालेगा या नहीं, बल्कि ये था कि वो एक मगरूर बादशाह बनेगा या एक आदिल और रहम दिल हुक्मरान। महल पहुंचते ही शहजादा सलीम ने देखा कि हर तरफ बेचैनी का आलम था। शाही तबीब, वजीर, सिपासालार और दरबारी सब बादशाह के कमरे के बाहर खड़े थे। सल्तनत के अजीम बादशाह, जो बरसों तक रियाया की हिफाजत करते रहे थे, अब बिस्तन अलालत पर बेबस पड़े थे। शहजादा आहिस्ता आहिस्ता अपने वालिद के करीब गया। बादशाह ने कमजोर हाथ से इसका हाथ थामा और धीमी आवाज में कहा, बेटा, सल्तनत को सिर्फ ताकत से नहीं, इंसाफ से चलाया जाता है। लोग बादशाह के महल को नहीं, इसके किरदार को याद रखते हैं। ये कहते ही बादशाह की आंखों से चंद आंसू बह निकले। शहजादे ने पहली बार अपने बाप को इतना बेबस देखा था। चंद दिन बाद बादशाह इस दुनिया से रुखसत हो गए। पूरे मुल्क में सोग छा गया। चंद हफ्तों बाद तख्त नशीनी की तकरीब मुनक़िद हुई। दरबार सजा हुआ था। उमरा, वज़रा और दूर दराज के सफीर मौजूद थे। सबको यकीन था कि नया बादशाह भी पहले की तरह शाहाना जिंदगी गुजारेगा। मगर जैसे ही ताज शहजादा सलीम के सर पर रखा गया, उसने सबको हैरान कर दिया। उसने सबसे पहले शाही खजाने का एक बड़ा हिस्सा यतीमों, बेवाओं, बीमारों और गरीब खानदानों के लिए वक्फ कर दिया। उसने ऐलान किया, आज से मेरी सल्तनत में किसी इंसान की इज्जत इसकी दौलत से नहीं, बल्कि इसके किरदार से होगी। दरबार में खामोशी छा गई। कई अमीर लोग हैरान थे, मगर आम रियाया की आंखों में खुशी के आंसू थे। अगले ही दिन नया बादशाह सादा लिबास पहनकर फकीर अल-दीन की झोंपड़ी पहुंचा, मगर वहां पहुंचकर वो हैरान रह गया। झोंपड़ी खाली थी। ना फकीर था, ना उसकी चटाई, ना किताबें। सिर्फ एक पुरानी लकड़ी की लाठी और एक खत रखा हुआ था। शहजादे ने कांपते हाथों से खत खोला। इस पर लिखा था, मेरे बेटे,
अगर तुम ये खत पढ़ रहे हो तो समझ लो कि मेरी जिम्मेदारी पूरी हो चुकी है। मैं तुम्हें बादशाह बनाना नहीं चाहता था, बल्कि इंसान बनाना चाहता था। याद रखना, जिस दिन तुम अपने आप को दूसरों से बड़ा समझोगे, इसी दिन तुम अंदर से छोटे हो जाओगे। और जिस दिन तुम अल्लाह के बंदों की खिदमत को अपनी इज्जत समझोगे, इसी दिन तुम हकीकी बादशाह बन जाओगे। खत के आखिर में सिर्फ एक जुमला लिखा था, गुरूर ताज को भारी बना देता है, मगर आजिज़ी इसे हल्का कर देती है। शहजादे की आंखों से बेइख्तियार आंसू बहने लगे। वक्त गुजरता गया। नए बादशाह ने महल के दरवाजे आम लोगों के लिए खोल दिए। वो अक्सर रात के अंधेरे में आम लिबास पहनकर शहर की गलियों में निकल जाता, लोगों के हालात जानता और खामोशी से उनकी मदद करता। उसने किसानों पर लगाए गए नाजायज टैक्स खत्म कर दिए, यतीम खानों और मदरसों की तामीर करवाई, बीमारों के लिए शिफा खाने कायम किए और अदल को अपनी हुकूमत की बुनियाद बना दिया। दूर दूर तक उसकी इंसाफ पसंदी के चर्चे होने लगे। लोग उसे इसके नाम से कम और आदिल बादशाह के नाम से ज्यादा याद करने लगे। कई साल बाद जब उसकी उम्र ढलने लगी, वो एक दिन अकेला इसी कब्रिस्तान में गया जहां कभी फकीर उसे लेकर आया था। वो एक बेनिशान कब्र के सामने बैठ गया। इसे यकीन था कि यही फकीरुद्दीन की आखिरी आरामगाह है, अगरचे इस पर कोई नाम नहीं लिखा था। उसने खामोशी से दुआ की और आहिस्ता से कहा, बाबा, आपने मुझे सल्तनत नहीं दी, बल्कि खुद मुझे मुझसे मिला दिया। अगर इस दिन आप मुझे कब्रिस्तान न ले जाते तो शायद मैं हमेशा गुरूर का गुलाम रहता। हवा का एक नर्म झोंका आया, दरख्तों के पत्ते हिले और बादशाह के दिल में अजीब सा सुकून उतर आया। इसे यूं महसूस हुआ जैसे फकीर की आवाज फिर से इसके कानों में गूंज रही हो। इंसान की असल अजमत इसके लिबास, ताज या खजाने में नहीं, बल्कि इसके अखलाक, आजिज़ी और अल्लाह के बंदों से मोहब्बत में है। बादशाह ने आसमान की तरफ देखा, आंखें बंद की और दिल ही दिल में अहद किया कि अपनी आखिरी सांस तक इसी सबक पर कायम रहेगा। ये दुनिया आर्जी है। दौलत, इक्तिदार, शोहरत और हसन एक दिन खत्म हो जाते हैं, मगर अच्छे अखलाक, आजिज़ी, इंसाफ और खिदमत खुल्क इंसान को लोगों के दिलों में हमेशा जिंदा रखते हैं। जो शख्स अपने गुरूर को शिकस्त दे देता है, वही अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी जंग जीत लेता है।